Good morning, student. Today we will read chapter number 4 in civics. Key features of a democratic government. First of all, we must know that democracy is a two type: direct democracy and representative democracy. Direct democracy is a form of governance in which people collectively make decisions for themselves rather than having their affairs decided by representative. Direct democracy is classified term pure democracy. Large nations like India, Australia, Canada, and United Kingdom and South Africa for representative democracy. Here decisions are made by the representative who are elected by the peoples. सबसे पहले हमें यह जानना है कि डेमोक्रेसी दो प्रकार की होती है: डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो गवर्नेंस होती है उसमें जो लोग होते हैं कलेक्टिवली डिसीजन लेते हैं, अब बल्कि उसमें रिप्रेजेंटेटिव डिसाइड नहीं करते। लेकिन जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है वो उसमें जो है रिप्रेजेंटेटिव डिसीजन लेते हैं जो कि लोगों के द्वारा इलेक्टेड होते हैं। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे बड़े देशों में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ही होती है। की element of democracy include participation, accountability, conflict resolution, concurring for equality and justice. ये इनकी एलिमेंट हैं डेमोक्रेसी के। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पार्टिसिपेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। Participation means taking part and being involved in something. In democracy, free and fair elections are conducted by choosing representative to the government. People participate in the election process to choose their government. The candidate who receives the maximum number of votes become the people representative and form the government. A government is elected for a fixed period of time called a term. पार्टिसिपेशन का मीन्स है भाग लेना, किसी भी प्रक्रिया में भाग लेना। डेमोक्रेसी में फ्री और फेयर इलेक्शन होते हैं जिससे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं गवर्नमेंट के लिए। पीपल पार्टिसिपेट लेते हैं इलेक्शन में जिससे वो अपनी सरकार को चुनते हैं। कैंडिडेट जो मैक्सिमम नंबर के वोट लेता है वो जो है अपनी सरकार बनाता है, और गवर्नमेंट जो इलेक्ट होकर आती है, चुनकर आती है, उसका एक फिक्स्ड टाइम पीरियड होता है उतने ही समय तक सरकार बनी रहती है। In this way, the power of the government get limited by regular election. Participation of citizens in a democracy goes beyond just taking part in voting. They have the power to hold the government accountable for all its action. Accountability means being responsible for one's action. The government is accountable for all its action to the people during its term. If the government behave irresponsibly, the citizen can express their opinions and criticism on its policy, and this is done by taking part in protest march, signature campaign, rally and strike. जो सरकार होती है उसमें लिमिटेड रेगुलर इलेक्शन होते रहते हैं। लोग जो हैं प्रजा जो है वो पार्टिसिपेट करती है डेमोक्रेसी में वोटिंग के द्वारा, और उनकी इतनी पावर होती है वो किसी भी गवर्नमेंट को बना सकती है।
अकाउंटेबिलिटी का मीन्स होता है रिस्पॉन्सिबल, किसी भी कार्य के लिए रिस्पॉन्सिबल होना। गवर्नमेंट का जो कार्य होते हैं वो गवर्नमेंट की योग्यता को दर्शाते हैं। इस गवर्नमेंट की टर्म में गवर्नमेंट अगर इररिस्पॉन्सिबल कार्य करती है तो जो वहाँ के सिटीजन होते हैं वो अपनी राय को एक्सप्रेस कर सकते हैं, आलोचना करके, उनकी पॉलिसी की आलोचना करके, और या उनके अगेंस्ट जो है प्रोटेस्ट मार्च करके, कैंपेन करके, रैली करके, स्ट्राइक करके अपनी आलोचना या अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। Freedom of expression gives people this right. When a government does not perform well, it is booted out by the people even before its term of 5 years is over and elections are held again. These elections are called mid-term election. Popular public opinion cannot be ignored by the government as it is widely published by the media in newspaper, on television, on the radio. In a democracy, the media is not under the control of the government. Dishonest person express their opinion on a variety of matter through the media and seek public opinion. अगर जो है गवर्नमेंट वो अपना कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर रही है तो लोगों को यह अधिकार होता है कि वो उस गवर्नमेंट को हटा सके, और उस ऐसी स्थिति में 5 साल से पहले इलेक्शन दोबारा कराए जाते हैं और इन इलेक्शन को कहा जाता है मिड टर्म इलेक्शन। पब्लिक की जो ओपिनियन होती है उसे गवर्नमेंट जो है इग्नोर नहीं कर सकती, और ऐसी ओपिनियनों को पब्लिश किया जाता है मीडिया के द्वारा, न्यूज़पेपर में, टेलीविज़न में, रेडियो में। डेमोक्रेसी में कोई भी व्यक्ति जो है वो अपनी राय को मीडिया के द्वारा बता सकता है। Today we believe in cyber survey world, and blogs and Twitter on the internet are the latest mean of people to inform, social network to share news and information with ease. आजकल जो आज का युग है वो साइबर सर्वे का युग है। इसमें ब्लॉग, ट्विटर और ये होता है जो इंटरनेट की हेल्प से लोग अपनी सोशल नेटवर्क साइट पे अपने विचारों को आसानी से प्रदर्शित कर सकते हैं। Though these social network they can form pressure group of survey public opinion regarding the government. The opposition party check the working of the government. They raise a voice against government policies and decisions that they find to be against the interest of the common man. Thus, opposition also keep a check on the action of the government. In this way, a number of check and balance are incorrupted in the representative democracy to ensure accountability. जो सोशल नेटवर्क होता है वो इस तरह की जो सोशल नेटवर्क की साइट्स हैं उनसे हमें पब्लिक की जो राय है उसका बोलबाला हमें दिखाई देता है। अपोजिशन पार्टी जो है वो गवर्नमेंट के वर्क को चेक करती है और जो आवाज़ होती है लोगों की उस पॉलिसी और डिसीजन को बताती, एक कॉमन मैन के जो विचार हैं उनको बताती है। अपोजिशन का कार्य होता है गवर्नमेंट के एक्शन को चेक करना। इससे चेक और बैलेंस जब ये कार्य होते हैं तो इससे जो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की सुनिश्चित जवाबदेही इसमें बनती है। The prevent a ruling party or the government for misusing its power. These check and balance are contained in the Constitution. The judiciary of India is an independent body which is the protector of the constitutional law of the country. The judicial system of India in satisfy into various level.
अगर जो है रूलिंग पार्टी अपनी पावर का मिस यूज करती है तो ये चेक और बैलेंस के द्वारा देखा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में है या नहीं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाती हैं तो हमारे इंडिया की जो जुडिशरी सिस्टम है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को प्रोटेक्ट करती है और जुडिशियल सिस्टम जो है वो सेटिस्फाई करती है सभी लेवल को कि सभी लोग जो है वो अपना ठीक से कार्य करते रहें लॉ के अनुसार। नेक्स्ट है resolution of conflict. There can be many reasons for conflict when natural resources like land, water, and petrol and scarce the demand for them is big, it can give rise to conflict. The government uphold the constitution law and protect citizen right at the time of conflict. Our constitution has given its people the right to peacefully demonstrate their displeasure with the government policy. However, at the time, conflict may involve violence and destruction and affect peace and security of the people. संकल्प का संघर्ष यानी रिसोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इसमें कई रीजन हो सकते हैं संघर्ष के, जैसे कभी कभी नेचुरल रिसोर्सेज जैसे भूमि, वाटर या पेट्रोल की कमी से उसकी डिमांड बढ़ती डिमांड को कम करने के लिए संघर्ष किया जाता है। तो गवर्नमेंट को जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ होता है उसके अनुसार कार्य करना होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्ट होते हैं सिटीजन के राइट, जो कि हम संघर्ष के या अपनी रैली के टाइम या हम कोई आंदोलन कर रहे हैं उसमें हमारे क्या अधिकार हैं, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखित हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोगों के अधिकारों को अधिकारपूर्ण गवर्नमेंट की पॉलिसी से अगर वो खुश नहीं है तो वो किस तरह अपना प्रदर्शन कर सकते हैं, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। कभी कभी जो ये कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं ये वायलेंस यानी हिंसा का रूप ले लेती हैं, जिससे कि शांति और जो सिक्योरिटी है वो भंग हो जाती है। ऐसी स्थिति में जो है पुलिस को हेल्प करनी पड़ती है गवर्नमेंट की। Then the police is brought into action to handle conflict. The police and the army do not allow group to form mobs and indulge in routes activity like brickbatting and burning vehicles. Curfew is imposed for the safety of the people. Government can also impose a state of emergency during time of natural or man-made calamity, period of civil unrest and situation of international or internal armed conflict. A state of emergency is a declaration by the government that may suspend the normal function of the executive, legislative and judicial organ. जब यह कॉन्फ्लिक्ट जो है हिंसा का रूप ले लेते हैं तो पुलिस को इस संघर्ष को हैंडल करना पड़ता है। पुलिस और आर्मी जो है वो अलाउ नहीं करती कि कई लोग एक इकट्ठा हो या उपद्रवी कार्यों में लिप्त हो, जैसे कि ब्रिक बैटिंग या बर्निंग व्हीकल्स यानी कि पत्थर मारना या वाहनों को आग लगाना। कर्फ्यू जो है वो भी एक लोगों की सेफ्टी के लिए कहीं कहीं पर लगाया जाता है। गवर्नमेंट जो है कर्फ्यू लगाती है ऐसी स्थिति में जब नेचुरल या मैन मेड क्लैमिटी हो, कभी नागरिक अशांति की सिचुएशन आ जाए, इंटरनेशनल प्रॉब्लम आ जाए या इंटरनल संघर्ष में ऐसी स्थिति आ जाए कि उन्हें कर्फ्यू लगाना पड़े। स्टेट ऑफ इमरजेंसी जो है वो गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, जिसमें कि नॉर्मल फंक्शन जैसे हमारे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल ऑर्गन जो है वो जो है इमरजेंसी में जो है वो सस्पेंड हो जाते हैं। नेक्स्ट
टॉपिक है आपका इक्वलिटी एंड जस्टिस। इंडियाज अर्लियर सोसाइटी ट्रीटेड ए सेक्शन ऑफ पीपल हु वर्कड इन unclean occupation as polluting people as and considered term untouchable, forbidden to be touched. The untouchable had almost no right in the society. Untouchability was declared illegal in 1949. The Constitution has made a special provision for the welfare of the downtrodden. Seats are reserved for them. Parliament, education, institutional, and government undertaking in the form of SC, ST, and OBC quota. There is discrimination in our society on the basis of gender as well. इंडिया जो है, इंडिया की जो पुरानी सोसाइटी थी उसमें सेक्शन बटे हुए थे और उसमें एक सेक्शन था अनटचेबल का, जिसका मीन्स था अछूत। इनको जो है सोसाइटी में कोई भी राइट, कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं था। 1949 में जो अनटचेबिलिटी थी उसे इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया और कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल प्रोविजन रखा इनके आगे बढ़ने के लिए। दलितों के सीट इनके लिए पार्लियामेंट, एजुकेशन इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट जॉब्स में इनको स्पेशल रिजर्व कोटा रखा गया, SC, ST और OBC का। डिस्क्रिमिनेशन जो भेदभाव था जेंडर के अनुसार अब सोसाइटी में बिल्कुल बंद कर दिया गया। फॉर सेम रीजन फॉर द अदर्स द प्रैक्टिस ऑफ किलिंग द गर्ल चाइल्ड आफ्टर हर बर्थ स्टिल प्रिवेल। द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ फीमेल infanticide has now given away to the more modern technique of sex selection and female foeticide, killing of the girl चाइल्ड इनसाइड द वॉर्म। इसी तरह से जो लड़कियों को पैदा होने पर जो मार दिया जाता था, ये जो समाज में एक बुराई थी, इसको भी खत्म करना था। इसके लिए भी सरकार ने कदम उठाए। अब जो है मॉडर्न टेक्निक के द्वारा सेक्स सिलेक्शन, गर्भ में लिंग का निर्धारण जो था, जिससे पता चल जाता था कि गर्भ में लड़की है या लड़का। तो अगर लड़की होती थी तो लड़कियों को गर्भ में ही मार दिया जाता था। द प्रीनेक्टल डायग्नोस्टिक टेक्निक प्रोहिबिटेड फॉर ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट 1994 प्रिवेंट सेक्स डिटर्मिनेशन बिफोर बर्थ। इसके लिए सरकार ने कदम आगे बढ़ाया और 1994 में एक एक्ट प्रीनेक्टल डायग्नोस्टिक टेक्निक को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया। और ऐसे अगर कोई डिटर्मिनेशन बिफोर बर्थ, जन्म से पहले यदि कोई लिंग को मालूम करेगा तो इससे जो है लड़कियों की भ्रूण हत्या थम गई। द गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस द पालना प्रोजेक्ट विच इज क्रेडल स्कीम फॉर द गर्ल चाइल्ड। और तभी गवर्नमेंट ने एक स्कीम पालना प्रोजेक्ट के नाम से डिक्लेयर की गर्ल चाइल्ड के लिए। द स्टेट ऑल्सो गिव फ्री स्कूलिंग ऑफ गर्ल्स टिल ए सर्टेन स्टैंडर्ड। इन सम स्टेट पेरेंट्स आर पेड मनी बाय द गवर्नमेंट फॉर सेंडिंग देयर गर्ल्स टू स्कूल। Further, taking dowry and child marriage has been illegal in India. और कुछ स्टेट ने जो है बच्चों के, लड़कियों के लिए फ्री स्कूलिंग की है, फ्री स्कूल की शिक्षा स्थापित की है एक सर्टेन स्टैंडर्ड तक। और कुछ स्टेट में जो है पेरेंट्स को लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए मनी भी दी जाती है। इसके बाद डाउरी सिस्टम और चाइल्ड मैरिज को भी इलीगल भारत में घोषित किया गया। Providing equal right to minority is the hallmark of democracy. The Constitution of India has given 5 religion group of namely Muslim, Christian, Sikh, Buddhist and Parsi and official status of national minority. The Constitution recognizes the right of the minority group and give them certain privileges too. This way, people that belong to the minority group have reserved seat in school, college and even in the parliament. इसी तरह सरकार ने माइनॉरिटी के लिए भी कुछ इक्वल
राइट्स बनाए। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में 5 धर्मों को माइनॉरिटी माना गया, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट एंड पारसी। इसके लिए सरकार ने कुछ माइनॉरिटी की राइट्स की रक्षा के लिए कुछ ग्रुप बनाए और इन्हें कुछ सहायता भी प्रदान की। इनकी भी सीटें स्कूल, कॉलेज और पार्लियामेंट में रिजर्व रहती हैं। ओके स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। गुड बाय।